السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا چیئرمین تلنگانہ حج کمیٹی نے محمد اسد اللہ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی ڈاکٹر سید اظہر علی، ممبر کمیٹی محمد علی اور حاجی محمد اور فلور حج کمیٹی حج ہاؤس حیدرآباد میں ٹریزرز حج 2026 کے انتخاب کے لیے انٹرویو پرسنالٹی ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر رکن تلنگانہ حج کمیٹی محمد لائق، رکن تلنگانہ حج کمیٹی عرفان شریف، AEO تلنگانہ حج کمیٹی بھی موجود تھے۔ رچا کنڈا کمشنریٹ کے حدود میں پیش آئے ہولناک قتل نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے تحت واقع ساکت کالونی فوسٹر بلیا بانگ اسکول کے قریب ریئل اسٹیٹ کاروباری اور راؤڈی شیٹر وینکٹ رتنم کو نامعلوم حملہ آوروں نے نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وینکٹ رتنم موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے۔ تحقیقات کے دوران ایک اہم انکشاف سامنے آیا کہ وینکٹ رتنم کے خلاف دھولپیٹ پولیس اسٹیشن میں راؤڈی شیٹ درج تھی اور وہ ماضی میں جڑواں قتل ڈبل مرڈر کیس کے ملزم کے طور پر بھی پولیس ریکارڈ میں موجود تھا۔ ان جرائم پیشہ پس منظر کے بعد اب پولیس کو شبہ ہے کہ وینکٹ رتنم کو ان کے پرانی دشمنیوں اور قیبوں نے ہی منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا ہوگا۔ حملہ آور بھی موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے تعاقب کرتے ہوئے پہلے ریوالور سے فائرنگ کی اور پھر چاقو کے ساتھ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وینکٹ رتنم موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ نہایت بہیمانہ انداز میں مصروف سڑک پر انجام دیا گیا، جس کے بعد مقامی افراد نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوع سے ایک گولی برآمد کی ہے اور قتل کے محرکات تک پہنچنے کے لیے ہر زاویے سے تحقیقات جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس وینکٹ رتنم کے پرانے تنازعات، مالی معاملات اور ماضی کے مجرمانہ ریکارڈ کی روشنی میں معاملے کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جائے وقوع کے اطراف نصب CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی اور حملہ آوروں کی موٹر سائیکل کی شناخت پر کام کیا جا رہا۔ اس بہیمانہ قتل نے ساکت کالونی اور جواہر نگر کے مکینوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، خاص طور پر اس لیے کہ واقعہ ایک اسکول کے قریب پیش آیا اور نہایت منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جرم پیشہ گروہوں کی سرگرمیوں میں اس قدر بے خوفی تشویشناک ہے۔ تحقیقات تیزی سے جاری ہے اور پولیس کا ماننا ہے کہ دھولپیٹ کے راؤڈی شیٹر وینکٹ رتنم کے قتل کے پیچھے بدلے کی کارروائی کا پہلو انتہائی مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ యాజ్ ఆఫ్ నౌ పాత కక్షలు దీనికి కారణమని తెలుస్తున్నది. చాలా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా మించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. నేను ఫర్దర్గా అప్డేట్ చేస్తాను. అన్ని చెక్ చేస్తాం. దాంట్లో ఆయుధాలు ఏం వాడారు ఏమనేది కూడా మాకు బుల్లెట్ కూడా అక్కడ పడుంది, అన్నీ కూడా చెప్తాను. حیدرآباد ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ، 3 پروازوں کو بم کی دھمکی پر ایمرجنسی کارروائی۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب نامعلوم افراد کی جانب سے 3 مختلف پروازوں کو بم کی دھمکی پر مبنی ای میلز موصول ہوئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق دھمکی آمیز ای میلز درج ذیل پروازوں کو بھیجی گئی، جن میں کیرلا، کنور، حیدرآباد انڈیگو ایئر لائنس، فرینکفرٹ حیدرآباد، لفٹھانسا ایئر لائنس، لندن حیدرآباد، برٹش ایئر ویز۔ دھمکی کے بعد فوری طور پر حکام نے تینوں طیاروں سے تمام مسافروں کو نیچے اتار کر محفوظ آئسولیشن زون منتقل کر دیا۔ بم اسکواڈ ٹیموں نے طیاروں، سامان اور متعلقہ علاقوں میں مکمل تلاشی لی، جبکہ CISF اور ایئرپورٹ سیکیورٹی نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے۔ پولیس نے دھمکی آمیز ای میلز بھیجنے والے افراد کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور سیکیورٹی عملے سے مکمل تعاون کریں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے کوکٹ پلی حلقے میں بالانگر پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں اور حاملہ خواتین سے ملاقات کی اور ان کو فراہم کی جانے والی تمام خدمات اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو فراہم کردہ انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے سے دریافت کیا اور تفصیلات حاصل کی۔ مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان رہتی ہے۔
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की मजबूत क़यादत में याकुतपुरा में तरक्की जोरों पर है। मजलिसी याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन में 1.5 करोड़ रुपए के जारी सीसी रोड के कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इसमें पुराना मादनापेट PS 1.2 करोड़, बानो नगर 12,50,000 रुपए, अल जबरा कॉलोनी 17 लाख रुपए, रोजाना ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग, अवामी राय ली गई। ज़ेर अल्तवा कामों को आगे बढ़ाया जा रहा। मजलिस का मतलब है कि दिल से अवामी राब्ते के साथ तेज रफ्तार तरक्की। याकुतपुरा हलके के मकीनों ने MLA का शुक्रिया अदा किया और उन्हें याकुतपुरा हलके के MLA की हैसियत से 2 साल कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद भी पेश की। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कुरमागुड़े में 3 रोडों का काम शुरू हुआ है। एक ओल्ड पुलिस स्टेशन मादनापेट की रोड का जो मेन काम चल रहा है, जिसकी लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है। उसके अलावा भानु नगर में एक रोड का काम है जिसकी लागत 12.5 लाख रुपए है, और अल जाबरी कॉलोनी में एक रोड है जिसकी लागत 17 लाख रुपए है। ऑल टुगेदर अगर अपन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ रुपए के काम ऑलरेडी चालू। मरजान होटल विजयनगर कॉलोनी के करीब देर रात गए सड़क हादसा पेश आया। पोल्ट्री लॉरी कार से टकराकर उलट गई। हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में मरजान होटल के करीब गुज़िश्ता देर रात गए एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जब एक तेज रफ्तार टाटा एस पोल्ट्री लॉरी की टक्कर क्रेटा कार से हो गई, जिसके नतीजे में पोल्ट्री से भरी हल्की लॉरी मौके पर ही उलट गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर इंतहाई शदीद थी, जिससे लॉरी को खासा नुकसान पहुंचा, जबकि कार भी बुरी तरह मुतासिर हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस और हबीबनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके का मुआयना करते हुए FIR दर्ज कर ली और जख्मियों को माली नुकसान का जायजा लिया। पुलिस हादसे की वजह जानने के लिए मजीद तहकीकात कर रही, जिसमें तेज रफ्तारी और लापरवाही को अहम अवामिल समझा जा रहा। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि रात के औकात में खास तौर पर एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। HCMA में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना उभरती हुई आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस दौरान खिताब भी किया। उन्होंने कहा है कि बहुत साल पहले 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की, हमारे बानियों ने तकदीर के साथ एक कोशिश की। जब वादा पूरा करने का इतना बड़ा वक्त आया और एक अजीम मुल्क बनाए, हमारे कायदीन ने एक असम्बली बनाने का फैसला किया। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर बहस करने के लिए जानबूझकर बहस करने के लिए उन्होंने एक नया आइन तैयार किया और फैसला किया हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार जमहूरिया बन जाएगा, फितरत में सोशलिस्ट और सेक्युलर। आज जब हम अपने मुस्तकबिल के लिए रोड मैप बनाना चाहते हैं तो हम महात्मा गांधी से तहरीक लेते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर से। हम आइन साजों से मुतासिर हैं। हमारे लोगों ने दहाइयों तक जंग की। अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए 2014 में सोनिया गांधी की क़यादत में और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह हमने अपने ख्वाबों को हासिल किया। तेलंगाना हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र रियासत बन गई और इसके अलावा अब हम कोशिश कर रहे हैं भारत की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बनने की और दुनिया के बेहतरीन में से एक बनने की। आइन साजी के हिंदुस्तानी मॉडल पर अमल करते हुए हमने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने का फैसला किया। निजामाबाद में धर्मपुरी हिल्स इलाके में MBT पार्टी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की क़यादत में BRS और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद क़ायदीन, ख़वातीन और नौजवानों ने MBT पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शामिल होने वालों में करीम लाला, नूरजहां बेगम, मोहसिन बिलाल, आमिर बिल्डर और सैयद सिराजुद्दीन शामिल थे। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने दावा किया कि आइंदा म्यूनिसिपल इंतखाबात में MBT पार्टी के कम अज कम 5 कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे और कामयाबी के बाद शहरी मसाइल के हल को दी जाएगी। मजलिस बचाओ तहरीक जो है एक स्प्रिंग है, आप जितना उसको दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना उलझेंगे। तो आप जो है कुछ बेखौफ नापिकार लोग जो है मेरे को रोकने की कोशिश करे कि तू बार बार निजामाबाद कहीं को आ रहा, तो निजामाबाद किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब तो मैं और जिद पे आऊंगा, हर हफ्ता आऊंगा, आप नखरे करे तो। अब मैं भी जो है जब तक यहाँ पर 5 से 6 सीट नहीं जीतेंगी मजलिस बचाओ तहरीक, मैं निजामाबाद का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। निजामाबाद के गयूर अवाम को मैं जो है निजामाबाद को एक मॉडल सिटी बनाकर देना चाह रहा हूँ। मैं निजामाबाद में एक बेहतरीन प्लेग्राउंड बनाएंगे हम,
निजामाबाद में एक बेहतरीन स्विमिंग पूल बनाएंगे। निजामाबाद में जो है जो रोड और जो लाइटनिंग सिस्टम खराब हो गया उसको बनाएंगे। और गोवा के बिरचीबाई रोमियो लेन नाइट क्लब में भयानक आतिशबाजी में मरने वालों की तादाद 25 हो गई है। मरने वालों में 20 मुलाजमीन और 5 सयाह शामिल हैं। ये वाकया राजधानी पणजी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शुमाली गोवा के अरपोरा गांव में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग इतनी खौफनाक थी कि कुछ ही देर में पूरा क्लब धुएं और शोलों की लपेट में आ गया। इब्तदाई तहकीकात में बताया गया कि वारदात एक धमाके से हुई, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। कई लोग आग के शोलों से नहीं बल्कि धुएं में दम घुटने से हलाक हुए। कई मुतासरीन ग्राउंड फ्लोर और किचन में फंसे हुए थे, क्योंकि तंग रास्ता होने की वजह से वो वहां से निकल नहीं पाए। नाइट क्लब एक तंग गली में वाक़ था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकी। पानी के टैंकरों को तकरीबन 400 मीटर दूर रोकना पड़ा, जिससे आग बुझाने में ताख़ीर हुई। इस दौरान हुकूमत ने कहा कि तमाम मुतासरीन की शनाख्त कर ली गई है। उनमें उत्तराखंड से 5, नेपाल से 4, झारखंड और आसाम से 3, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 2, मगरबी बंगाल का 1 शख्स शामिल है, जबकि 5 सयाहों में दिल्ली के 4, एक ही खानदान के 3 अफराद और कर्नाटक से 1 शामिल है। इस मामले में गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा है कि इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि नाइट क्लब ने आग से हिफाजत के बुनियादी उसूलों पर अमल नहीं किया था। यही वजह है कि आग तेजी से फैली और लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाइट क्लब के इंतजामी टीम के 4 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनमें चीफ जनरल मैनेजर, बार मैनेजर और गेट मैनेजर शामिल हैं। वहीं क्लब मालिकान और इवेंट मुंतजमीन के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इंडिगो को तकनीकी खराबी की वजह से परवाज की मनसूखी और ताख़ीर के लिए जारी करदा शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए मजीद 24 घंटे की मोहलत दी है। ताहम DGCA ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि अगर इंडिगो मुकर्ररा वक्त के अंदर जवाब देने में नाकाम रहती है तो बगैर समाअत के एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो के CEO और अकाउंटेबल मैनेजर ने जारी करदा शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत की दरख्वास्त की थी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते की बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट की वसी मनसूखी और ताख़ीर हुई थी। और इंडिगो के दोनों ओहदेदारों ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि इंडिगो के वसी फ्लाइट नेटवर्क और मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर नागुज़ीर हालात की वजह से उन्हें तफसीली जवाब तैयार करने के लिए वक्त दरकार है। इसके बाद DGCA ने जुज़वी तौर पर उनकी मांग और मान ली और उन्हें 24 घंटे की तौसी दे दी। इंडिगो को अब शाम 6 बजे तक शोकाज नोटिस का मुकम्मल और तफसीली जवाब जमा कराना और DGCA ने भी इंडिगो को एक वाज़ेह इंतबाह जारी किया और कहा कि मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। अगर मुकर्ररा वक्त तक तसल्ली बख्श और मुकम्मल जवाब नहीं मिलता है तो रेगुलेटर फरीकीन को सुने बगैर एकतरफा कार्रवाई करेगा। RBI रेपो रेट में तखफीफ बैंकों को तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सपोर्ट और न्यूट्रल स्टांस वगैरह को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि शेयर मार्केट में तेजी रहेगी, लेकिन इसका बिल्कुल बरअक्स देखने को मिला। आम लोगों की सोच को धूल में उड़ाते हुए शेयर बाजार ने ऐसा गौता लगाया कि आम सरमायाकारों के कुछ ही घंटों में तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आदाद व शुमार को देखने से पता चलता है कि सेंसेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई है। दूसरी तरफ निफ्टी में 280 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। माहिरीन का कहना है कि इंडिगो के शेयर्स में आई गिरावट के सबब हालात बहुत खराब हो गए। आइंदा हफ्ते फीड की मीटिंग होने वाली है, जिनमें 25 बेसिस पॉइंट्स की तखफीफ होने के आसार हैं। हालांकि दुनिया के बाकी ममालिक के सेंट्रल बैंक शरह सूद पर पॉज बटन दबा सकते हैं। ऐसे में सरमायाकारों की तरफ से बहुत मोहतात रुख इख्तियार किया जा रहा। इसके अलावा रुपए में गिरावट और खाम तेल की कीमतों में तेजी भी शेयर बाजार में गिरावट के अहम असबाब में शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अहम इंडेक्स सेंसेक्स 805.47 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 84,906.90 पॉइंट्स पर दिखाई दिया। सेंसेक्स 85,624.84 पॉइंट्स पर खुला था और गुज़िश्ता दिनों भी सेंसेक्स तेजी के साथ 85,712.37 पर बंद हुआ। वैसे दोपहर 2 बजे सेंसेक्स तकरीबन 745 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 84,969.11 पॉइंट्स पर कारोबार करता नजर आया।
पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 2025 वंदे मातरम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ज्योति मानी का कहना है कि वंदे मातरम का ये 150वां साल है। हमें हिंदुस्तान के लोगों को, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस पर फख्र है क्योंकि हमने ये नारा बुलंद किया और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग व दीगर तंजीमों के लोगों की एक नस्ल ने अपने शहरियों की कुर्बानियां दी। पार्लियामेंट का फ्लोर ये है कि हुकूमत बहरान में है। हमने हुकूमती पॉलिसियों की वजह से दिल दहला देने वाले मनाजिर के साथ हवाई अड्डों पर इंडिगो की नाकामी को देखा, जिसने मुतवस्सित तबके और दीगर अफराद को बुरी तरह मुतासर किया है जो हवाई सफर करना चाहते थे। देखिए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ज्योति मानी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। See, we see the complete Indigo fiasco unfolded across the airports. There are heartbreaking scenes across that because of the government policies which created this kind of situation, which is उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2013-14 में दर्ज फहरिस्त ज़ात की फहरिस्त में 48 गैर दर्ज फहरिस्त ज़ातों को मुबैना तौर पर शामिल करने को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत के होम, कानून, समाजी बहबूद और बाइख्तियार बनाने के महकमों और समाजी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच ने हरिद्वार के रिहायशी मेनू की तरफ से दायर मुफाद आमे की अर्जी की समाअत के बाद ये अहकाम जारी किए, जिसकी एक कॉपी मौसूल हुई है। दरख्वास्त गुजार ने महकमे समाजी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जारी करदा हुक्म को चैलेंज किया। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 341 के तहत हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को किसी भी जात को दर्ज फहरिस्त जातों में शामिल करने का हक हासिल है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से रियासत में आईनी नज्म बहाल करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि 26 जनवरी 2016 को जारी करदा हुक्म की तामील में दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल की खसूसी अदालतें कायम नहीं की गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।